السلام علیکم محترم بزرگوں، میرے بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ہم تمام آج یہاں پہ مل جل کے بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ ایک عمارت بنی ہوئی تھی جس کے 3 ستون تھے. چوتھا ستون جو ہے اس کے لیے کوئی عمارت کو سیدھا رہنے کے لیے چوتھا ستون کی ضرورت ہے. ہم سب مل کے چوتھا ستون بن کے ایک عمارت، پختہ عمارت کو بنائے ہیں. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ عمارت جو ہے اور بہت بڑی بلڈنگ بن کے سب دنیا میں روشن ہوگی. میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا جب ایسے حالات تھے کہ تھوڑی غریبی بھی مجھے دکھایا اللہ میاں، اس کے بعد کی زندگی بھی بتایا. میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ اللہ میاں ہمیشہ جب بھی میں کچھ غلط قدم اٹھاتا ہوں تو اللہ میاں میرے کو یاد دلاتا ہے کہ تو کیا تھا، آج تو کیا ہے، کبھی تیرا پیچھا جو ہے کبھی مت بھول. اور سب لوگ جو ہے بھائی بہنوں کی محبت کی اس کی بات کریں. میں بچپن سے میری عادت ہے کہ میری یادداشت اچھی ہے. بچپن سے ہر ایک انسیڈنٹ میرے کو یاد ہے جوانی کا. اور شاید میں رحیم اور عنایت ایسے ہیں کہ 21 سال تک ہم جو ہے وہ ماحول کو دیکھے ہیں. فرید بھائی، فخر الدین بھائی، رشید بھائی سب اپنے اپنے جو ہے جابس پہ چلے گئے، مگر میں عنایت، رحیم، نسیم وغیرہ ایسے ہیں کہ جو ہم بچپن سے لے کے 21 سال تک پورا ماحول کو دیکھے ہیں. یہ بہت آسان دکھتا ہے کہ جو ہے سب مل جل کے تھے اور سب بچے ان کے مل جل کے ہیں. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مل جل کے رہنے کے لیے کیا کیا سیکریفائسز وہ لوگ کیے ہیں، کیسے وہ محبت ان کے درمیان تھی جس کی وجہ سے یہ آگے جا کے ہم سب مل کے بیٹھے ہیں. اتنی محبت جو بھائیوں اور بہن میں تھی میں آج تک کہیں اور جگہ نہیں دیکھا. اس لیے یہ اختلافات تو ہمیشہ ہر جگہ رہتے ہیں. یہ دن بھی اگر کسی بھائی میں بہن میں یا دونوں بھائیوں میں بہن میں کسی میں اختلافات آتا، اتنے بے چین ہو جاتے ہو کہ بس آ کے اس کی نظر بہن پہ پڑی تو بس سے بات کر اتنے معلوم ہے چپ. ایسا میں آیا تو ان بات کرتی شاید میرے سے بول کے ایسا جو ہے جوڑ کے چلنے سے ہی آگے بڑھتی ہے یہ. ورنہ جو ہے ایسا خاموش خالی باتوں سے جو ہے یہ عمارت نہیں ٹھہرتی ہے. اتنے سیکریفائس. اور کیا تھا سب سے اچھی چیز جو دکھتی تھی، بے لوث محبت. اور کیا خود غرضی کا ایک خطرہ بھی نہیں تھا ان کے درمیان. اماں کا ایک فیمس طریقہ تھا، ان پہنے تو کیا میں پہنے تو کیا. آج کہاں ہے بھی وہ، ان پہنے تو کیا میں پہنے تو کیا. رشید پہ کپڑے لا کے 2 ساڑھے اماں کو دیا تو پہلے چچانی کو ان لینے دے لے، ان لینے دے لے تو کون تو بولتا کہ آج پہلے میرے کو اچھی ساڑی ہونا، دوسری ساڑی بعد میں جو نا دوسروں کو دینا. آپا شریف آپا تلے پہلے، ہم اسے بھی تلے پہلے کیا ہے، ان پہنے تو کیا میں پہنے تو کیا دے. ایسا جو ہے اس کا جو جذبہ تھا، اس کو جو مطلب کہ خود غرضی کا نام و نشان نہیں تھا میں والدہ میں. اور جو ہے بڑے ماموں کا تو میں فین ہوں. ماموں آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس کے بیٹے بھی اسے یاد نہیں کرتے ہوں گے جتنا میں یاد کرتا ہوں. سامنے ہمارے گھر کے ہوٹل، چھوٹے بچے ہم ہوٹل میں جا کے ماموں کھانا کھاتا تھا، ناشتہ جیسے اس کی نظر پڑتی تھی میرے پہ بلاتا تھا، ساتھ بٹھا کے ہوٹل میں کھانا کھلاتا تھا، ناشتہ. کیا ضرورت تھی اس کی، اتنا فخر کرتا تھا وہ ہمارے پہ. کبھی کبھی ہم جو ہے نا ہمارے بچوں کو فخر کرے، ایک بچے کے بدلے دوسری بچی کو کچھ بڑا چڑھا کے بات کرے، دوسری بچی کو غصہ آتا ہے. اس کے بچوں کے سامنے ہمارے ایسی تعریف کرتا تھا، ویڈا ارے نکلی تو مکہ کوڑ کو چانا عجیب کا ایسا تعریف کرتا تھا. اور جو ہے آج اپنے بھائی کے لیے دوسرے بھائی کو وقت نہیں ہے. اس زمانے میں ہی واز دی بزیسٹ پرسن. دکان میں اتنے گراہک تھے، ماموں ریڈی سائن نہیں کرتا ہے،
6 रुपये की फीस को 3 रुपये करने रेड्डी संडे करता है। हमारे को 6 महीने की फीस 6 रुपये, इकोनॉमिकली बैकवर्ड बोल के 3 रुपये करना उसको। रेड्डी के पास जाके हाजी हाजी की इंतला चेन पोगो आधा घंटा खड़ने के बाद उसके पास फिर क्या मामून सैनिश नहीं करता है, तो बेचारा वो सुबह में पुलिस स्टेशन के बाजू छोड़ भी है, पाता था रेडी आधे घंटे के लिए। बन सवर को जाकर मेरे साथ जाके वो 6 रुपये की फीस 3 रुपये करवा के ला के देता था। उसकी जो एक यतीमों की जो मदद करा है अल्लाह, उसकी एक मदद की वजह से डेफिनेटली उन जन्नत में है। कितने भी गुनाह करा हो, क्या भी करा हो, सब असेड हो। मैं बताता हूँ कि एक तीनों के 3 कैरेक्टर्स थे। ऐसा लगता है कि बड़ा मामू एक फादर फिगर, अम्मा एक मदर फिगर, छोटा मामू उनका बच्चा। ऐसे तीनों जो मोहब्बत से लोग ताज्जुब करते हैं कि भाई क्या है आखिर तुम लोगों को जो है कहाँ से आती नहीं, बोले तो वो चुटके नहीं आते, सैक्रिफाइस करना पड़ता। और बचपन में थे हम लोग, मालूम नहीं होता था कि कितना मुश्किल होता है बाहर के लोगों को जो है एडजस्ट करना। मैं किसी के सामने तारीफ नहीं करता हूँ, मेरे बचपन में मेरे को जो ख्याल आता है हमारे बड़े भाभी का आता है। मैं आज इस वक्त सोचता हूँ कि भाई आखिर बड़े भाभी जब शादी हुई थी भाभी की, वी वर इन द कंबाइंड फैमिली। सास के पास बहू रहना मुश्किल आज के जमाने में, वैसा जाके किसी कंबाइंड फैमिली में जाके बहू बन के आके मिलजुल के रहना, बोले तो आज उनकी जो बच्चे सब इस स्टेज में आए, बोले तो वो उनके सैक्रिफाइसेस। तो जितने भी हमारे घरों में हमारे पहला दूसरे घरों में गए हैं या दूसरे लड़कियां हमारे घर में आए हैं, एक समंदर था वो। ऐसा जल्दी जो है हमारा खानदान उनको ऐसा हाथ पे मिला के अपना बना लेता था। वो लोग महसूस ही नहीं करते थे कि आखिर हम कितने भी दामाद आ गए ना, सब परेशान है क्या है आखिर ये घर में। उन भूल जाते थे उनके माँ बाप को, ऐसा हमारे घर में एक मेंबर बन जाते थे। आज यू कैन इमेजिन कि एक उनके माँ बाप की भी हम ये करना कि इतने बड़े खानदान में मैं मेरे बच्चे को कैसा दे रहा हूँ, कैसा एडजस्ट करती हूँ कि 17 मामू सोचेंगे। आज मैं मालूम है मेरे बच्चे को 1000 सोचता हूँ, उसकी क्या है, इसकी क्या है, उनकी क्या है, उनकी क्या है। मगर ये सब जो है कैरेक्टर्स हमें ऑब्जर्व कर लेना, करके प्रैक्टिस करना भाई। और क्या है, हसद जिस वक्त हमारे दिल में आ गया समझो कि हम बर्बाद हो गए। हसद बुग़्ज़, हर आदमी की अच्छा ही चाहो भाई, अच्छा ही चाहो, अच्छा ही चाहे के मिलजुल के मिलनसार रहने की कोशिश भी करना खाली। और तो ये और हमारे छोटे मामू बिल्कुल जो है वो क्या बोलते एक अल्लाह वाले आदमी, और जो है हमेशा हक का सपोर्ट करने वाला छोटा मामू, हक का सपोर्ट करना। कौन भी हो, उसका भाई हो तो बहन हो, नहीं तो भाई तो कहाँ से गलती हुई तो उसका हिस्सा से दिया अलग, ऐसा बोल करता था। मगर कभी जो है उन्होंने एग्जाम्पल बना ऐसा हर इसका। और मैं क्या बोलूँ, हमारे हर घर में एक एक कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर्स का सभी जो स्टडी करके आज मैं खड़ के यहाँ मैं आपको अल्लाह में मैं फख्र नहीं करता हूँ। जो मेरे को अल्लाह में यहाँ नवाजा है, चाइना में ऐसी बड़ी होटल में जाके मैं ठहरा था, मैं अपने आप को संभाल नहीं सका कि मैं वही बच्चा हूँ जो 10 पैसे देके अपने निकल जो है स्त्री का ये करता था, बताता था 10 पैसे मिले तो टेलर के पास जाना, जाके पीछे से निकल पूरा रफ कराना। वही से बच्चों अम्मा जो भी है मैं अम्मा की तो नहीं तो सबसे अच्छा तो सबसे वही से शख्सियत में आज मैं हमारे जिद्दा में सबको बोलता हूँ मैं आज जो मेरे वालदा की वजह से क्या है, मेरे वालदा ऐसे थे कि उन्हें अपना कभी सोचे नहीं,
اتنے فکرے، 7 بچوں کے شادیاں ہونا ہے، ایک ٹوال لپٹی سو گئی، 5 منٹ میں کھڑاٹے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، گولیاں کھا کے مر رہے، بی پی کھا کے مر رہے، کیا ماں کہاں ہے ہمارا سو گئی زمین میں. پھر صبح میں پھر، اور میرے شاید میری زندگی کے آخر تک میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ میری ماں کی جو ہے نا شرٹ پہ پیور لگتا تھا، بٹ لکڑیوں کا تیل لگ کے جو یہ کرتا پھٹا تھا، تو خالی کرتا نہیں ہوتا، پیسے کرتا ڈال کے کرتے. اور بہت سے لوگ جو ہے نا میرے والدہ کو کرٹیسائز کرتے، ان کی مرضی ہے کرنا. تو یہ بات اگر انہیں سوچے کہ ایک ویڈیو اتنے بچوں کو لے کے پال کے بڑی کر کے ان کے شادی کر کے مکمل کرنا بولے تو کتنے سیکریفائسز کرے ہوں گے. تو nothing comes free. We have to sacrifice for something, either monetarily, physically, جو بھی ہو سکا ہے. ہم جب تک سیکریفائس نہیں کرے اور جو ہے نا بغض ہٹا دیں دل سے، سب کیا میں کیا سب ایک ہی ایسا بول کے جب تک یہ نہیں کرے ہم کبھی بھی مل جل کے نہیں رہ سکتے. اور ایک بات کیا ہے، چھوٹی سی بات بتا دوں، میں ہمارے بھائیوں میں اللہ میں ایسے محبت ڈالا تھا، اللہ میں آئندہ بھی ایسے محبت میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں کیسا محبت تھی. ایک بار 3rd ایئر انجینئرنگ میں دوپہر میں ایک ڈرائیور آیا میرے پاس، సిద్దిక్ కొంచెం దోస్తు వల్ల సిద్దిక్ కొన్నాడు ఎవడప్ప నీకోసం వెతుకుతున్నాడు నువ్వు కావాలంట. मैं उसके पास मेरे पास आया, ఏం కావాలా మీ అన్న పిలుస్తున్నాడు రాగా, ఇంకోడప్ప లేదు ఆయన 5వ దినం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరింగ్ పిలుస్తున్నాడు. ఎందుకప్ప ఇది ఆయన ఎక్కడో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాడు కదా, లేదు నీకు రామంటున్నాడు. सीधेगा तो भाई है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने ठहरा हुआ, बोला कि भाई तेरे पास पैसा है क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरे नाम से अकाउंट ओपन करता हूँ, जब भी तेरी जरूरत होगी. That was the first account I had. अल्लाह में उन हाथों से जो अकाउंट खुलवाया था आज मेरे पास करोड़ों के मेरे पास है. और उस जमाने में जो मदद करा 3000-4000 जो बैंक में थी उससे मैं किताबें खरीदता था, पढ़ता. तो उससे मदद करने से आगे होते और लोग एक दूसरे को याद करते. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता. अगर मैं ज्यादा कुछ कहा और सबसे पहला एक बात क्या है, सब बोलते हैं कि भाई अरे क्या देते हो ऐसा है कि, तो बोला भाई मैं एक शख्स था मेरी जिंदगी में जो अगर नहीं होता तो आज मैं नहीं होता. फर्स्ट मैं रशीद भाई को कैसा याद करता हूँ बोले तो बच्चा था, अम्मा के गोद में सो गया था, कोई लाके केला दिए, केले को खा के फेंक दिया केला, ले उठा दे बड़ा, नहीं मैंने उठाता नहीं जहाँ से कौन बहन आज नहीं छोटा बच्चा भाई को तभी मालूम नहीं मेरे को कहा कि बैंक से डाल में खा उठा तो गुस्सा करता था. बोले अम्मा क्या कहते अम्मा जाके उठाया. जब भी मेरे को मालूम किए रशीद भाई भैया है बोल के. और मेरी जिंदगी में जहाँ मैं एक मोड़ लेने वाला था वहाँ हमेशा रशीद भाई को मैं साथ पाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियरिंग करके क्या कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है, तो पहले सबसे पहले जो मेरे को अपने साथ रखा वो है, इवन जब भी छुट्टी आती थी इंटरमीडिएट में सब या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काम में हुए कॉलेज से आके खाली उसे देख के जो ऐसा उसके कैरेक्टर से हम ऑब्जर्व करें, डेफिनेटली हम नहीं पढ़ते थे. हर वक्त हमारे पर तलवार लटकी रहती थी कि भाई आखिर क्या तेरे भाई हम पढ़ लें, भाई तू पढ़ना है तो पढ़ ले, ना तो तुम्हें दिखाओ दो. अम्मा एक ही बात है, अम्मा या अल्लाह सब भाई हम पढ़ लें, तू मेरे को पढ़ा ये के रात दिन. तो हमें वो सब अल्लाह में जो हमारे एक मुकाम एक वक्त आता है जिंदगी में जब ऊंच नीच होती रहती है, उसको हमें बुरा भला नहीं करना, ये किसकी वजह से है, कई कोई से मेरे गरीबी है. अगर जरा सबर करके लोग अगर आगे बढ़े बाद में मालूम होता है कि वो जो करा था अल्लाह मियाँ उसकी भलाई के लिए किया था मेरी. इसीलिए हम जो है गरीबी भी मैं भलाई बोलते हैं.
इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी इज ब्लिस बोलते हैं. डेफिनेटली पॉवर्टी इज ब्लिस बिकॉज ड्यू टू दैट ओनली वी आर नाउ इन दिस स्टेज. तो मैं जब BE पास करा 3 साल में पास तक के उसकी कार में बिठा के मैं चले गया था आलविन को. छोटा है लेट जाता बोल के. मेरी सैलरी है 250 रुपये. आगे रो के पड़ता था घर में. मैं कहीं को रोता है तो कहीं के भी सैलरी के भी 250 रुपये है तो सैलरी के को समझता थे. बस की फिर समझ ले तो ऐसा हिम्मत देता था. और जब मैं M.Tech के लिए अप्लाई करा, गाँव के लोग हमारे कुछ मालूम ही नहीं. उस वक्त उसके डीलर्स को बुला के सब बात करके ट्रेन से लेके जाके घर में रख के इंटरव्यू दिला के सीट दिलाना. और फिर मैं बता रहा हूँ इतना इत्तेफाक है, BHEL में जब मेरी इंटरव्यू आई थी, दिल्ली जाना था मैं और मैं अमीबिया से सफर होता था. फखरुद्दीन भाई के पास घर में ठहरा हुआ था कानून में. फखरुद्दीन भाई तू नक्को जा दिल्ली को बोला तो बस खुशी में बहुत उतना डर. ये भाई है नहीं क्या बात क्या अच्छा है तो क्या वो बन जाता ट्रीटमेंट सब होगा जाकर कहाँ जाना है किधर जाना है. देखो मैं बोला ना, मेरे हर जिंदगी के हर मोड़ में मैं रशीद भाई को साथ पाया. उसी वक्त कुछ काम था रशीद भाई को. 19 नवंबर मेरे साथ लेके जाके दिल्ली लेके उन्हें दिल्ली को ज्यादा बन के मैं गया होता मैं ले जाता था. साथ जाके जो है ना इंटरव्यू दिया. उस बाद में ये हालत हो गई. और मैं बताऊं और एक चीज क्या था बोले तो भाई और मैं मामू के बच्चे में मामा के बच्चे में इतना मिलनसार था. कभी कभी बशीर भाई फखरुद्दीन भाई, बशीर भाई रियाज भाईजान जिस तरीके से क्लोज रहते थे, कभी कभी जलन होती थी. क्या है उन भाई मैं भाई उन दोनों सब तीनों इतना मिलजुल कर रहती है. तो ये आप लोगों से सब गुजारिश क्या है बोले तो एक जो है सबको यही मोहब्बत कायम रख के अपने बच्चों को, मैं सब कई को बोला तो तुम सब लोगों को मालूम है, थोड़े नौजवान बच्चे बैठे हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि हम आखिर किस हालत में गुजरे हैं. जैसा कोई बता रहे थे कि क्या तुम्हें मुफलिसान थे क्या, कोई बच्चा बोला मुफलिसान थे तो बाद में अल्लाह ने जैसे नवाजा. और आज किसी को भूखा है बोल के किसी को मालूम नहीं. आज के जमाने में, उस जमाने में हमारे आंखों से देखते थे, हमारे रिश्तेदारों में लोग भूखे रहते थे, 2-2 दिन खाना नहीं खाते थे. अम्मा वगैरह सबके बुला के खाना खिलाना करना. तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है कभी भी अपना ये तो अपना खुद गर्ज से निकाल के अल्लाह के लिए जो काम करते हैं जरूर से उनके बच्चों को काम आते हैं इंशाअल्लाह ताला, और बच्चों के बच्चों को काम आते हैं. आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे बात करने में कोई ऊंच नीच हो तो माफ करें. सिर्फ मेरा यही था कि एक किसी को अपनी जिंदगी सुनाने से शायद किसी को जिंदगी बनती है बोल के मैं सुनाएं, वरना मेरे को अपने आप को गिरा लेना भी नहीं है, बड़ा ही बोल लेना भी नहीं है. बस अल्लाह मियां मेरी दिली ख्वाहिश को पूरी करे कि सब लोग ऐसा ही जो है और आगे बढ़ के और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें. आमीन.